Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I will explain you the chapter 2.2 recording of the transactions of class 11th accountancy subject. So in this video, I will explain you the rules of the debits and credit. It is another most important topic that which item should be debited and which item should be credited. What are the rules which should be followed to do the debit and the credit, means which item is to be debited, how we will come to know that this item is to be debited and this item is to be credited. So in this video I will explain the rules which everyone should know who are in the class 11 and has taken the account subject, and it is necessary for you, it is important for you that you should know the rules of debit and credit. This is the base for the accountancy subject. This is the base of the accounts. So let us start without wasting the time. Let us start with our topic, rules of debit and credit. So first of all, we should know that assets is always equal to the liabilities plus capital. So here the assets, the meaning of the assets and the meaning of the liabilities and the meaning of the capital is I have already explained this topic in the earlier videos, and in this video I will explain you only the rules which should be followed. So the assets should always be equal to the liabilities plus capital. Means whenever it is an accounting equation, this is an accounting equation, and this means that whenever there is any transaction takes place in the business, so there is a changes in the assets and in the liabilities and in the capital. Whatever the transaction may be, if any transaction takes place in the business, अगर business में कोई भी transactions होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उससे क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो there will be a changes in the assets में change होगा, there will be a changes in the liabilities and there will be a changes in the capital. Whenever any transaction takes place in the business, so these three are affected. Okay, clear? So for the assets equal to liabilities plus capital, for this equation we can write it as debit and credit. For the assets we can use the word debit, and for the liabilities we can use the word credit. So it means that debit should always be equal to the total of the credit side. The debit should always be equal to the total of the credit side, means debit and credit sides are always equal. These can be expressed in the form of an accounting equation. This is an accounting equation. Debit and credit also means assets is equal to the liabilities and liabilities plus capital, and this can be written as debit equal to credit. Now the meaning of the debit and credit already I have explained in the previous videos. So in this video अभी तो हमें ये क्लियर हो गया है कि डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, द टोटल ऑफ द डेबिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड. जो डेबिट का टोटल होता है क्रेडिट के टोटल दोनों बराबर होना चाहिए, एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन. ये जो ऊपर लिखा है दिस इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन. ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. मीन्स एसेट्स का जो टोटल होता है वो लायबिलिटीज और कैपिटल का दोनों का टोटल होता है. मीन्स अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है तो इन तीनों में चेंजेस होंगे, ये तीनों अफेक्ट होंगे, ये तीनों में अफेक्ट, दीज थ्री आइटम्स विल बी अफेक्टेड, ये तीनों में इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट्स has been done according to the modern approach and according to the traditional approach. So in this video I will explain you the rules according to the modern approach, that how which item is to be debited and which item is to be credited according to the modern approach. Then in the next video I will explain you about the traditional approach, but in this video I will explain you about the modern approach. So let us begin with the modern approach, with the rules of debit and credit according to the modern approach. First of all, we should know that it is very clear that every business transaction has a dual aspect. Means one of the aspect is debited and another aspect is credited. अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा. हर ट्रांजेक्शन में दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है. अगर एक एक्सपेक्ट डेबिट है तो दूसरा एक्सपेक्ट क्या होगा, इट विल बी क्रेडिट. So for debiting and crediting there are two methods, there are two approach, modern approach and a traditional approach. So let us start with the modern approach. According to the modern approach, which item is to be debited and which item is to be credited. In short, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ कि कौन सा आइटम डेबिट होता है और कौन सा आइटम क्रेडिट होता है. So first of all, here I have written debit in the bracket, reduce in owner's capital, and credit, increase in the owner capital. This you have to remember. बस आप इतना याद रखो, आपको पूरे रूल्स बन जाएंगे. क्या याद रखना है, डेबिट का मतलब होता है रिड्यूस इन ओनर्स कैपिटल, मतलब जो ओनर का कैपिटल है, कैपिटल जिससे हमने जो पैसा हमने बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पूंजी लगाई थी वो होता है कैपिटल. अगर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है तो डेबिट होगा. एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, अगर कैपिटल जो हमने बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया था अगर वो इंक्रीज हो रहा है किसी भी तरह से, किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर वो इंक्रीज हो रहा है
तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? डेबिट मतलब ओनर्स कैपिटल रिड्यूस होना, रिड्यूस मतलब कम होना, एंड क्रेडिट मतलब इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ओनर्स का कैपिटल इंक्रीज होना है। नाउ लेट अस सी द एसेट्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टर्म एसेट्स। एसेट्स से हम स्टार्ट करेंगे कि ये डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। एसेट्स होते हैं ये कब क्रेडिट होंगे कब डेबिट होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एसेट्स? इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बट इन शॉर्ट अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट in every business various kinds of assets are used, and the nature of the assets depends upon the business, depends upon the nature and the size of the business. ठीक है, so assets are used for earning profit. Assets are purchased for a long time. Assets means like land, plant, building, machine, furniture, all these are assets. ये सब assets. Every business, जितने भी business होते हैं, they use the assets. वो assets को use करते हैं, और कौन से assets use करते हैं? It depends upon the nature of the business. Business किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से assets वो use करेंगे. Okay, and the assets are purchased for long time, and assets are not for resale. तो बेचने के लिए नहीं लाया जाता है और ये लंबे समय के लिए खरीदे जाते हैं. For example, building, land, plant, machine, furniture, typewriter, computer, all these are assets. ये assets होते हैं. ठीक है, अभी तो हमने assets समझ लिया. अब हम इसका रूल समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज परचेज ऑफ एसेट्स. अब मैं यहाँ पे एसेट्स को मिटाकर आई एम राइटिंग हियर परचेज ऑफ एसेट्स. परचेज ऑफ एसेट्स. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. Purchase of assets means if the assets are purchased, अगर हम कोई assets खरीदेंगे, what will happen? Cash will go out and the assets will come in. For example, I have purchased furniture. Furniture is an assets. I have purchased the furniture. Then what will happen? Furniture is coming in the business and cash is going out of the business. And in the bracket here, it is written reduce in the owner capital. Means when the cash is going. Again, listen. When I have purchased the furniture, what is happening? Furniture is coming in the business, but cash is going out of the business, and cash is going out of the business means capital is decreasing. जो हमारी पूंजी थी वो कम हो रही है क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, पूंजी कम हो रही है. सो परचेज ऑफ एसेट्स. अब आप बताओ डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कैसे मालूम होगा? हमारा कैश कम हो रहा है क्योंकि हमने एसेट्स खरीदी, हमारा कैश जो है कम हो रहा है. कैश कम हो रहा है तो यहाँ पे लिखा है reduce in owner capital means debited. It means that purchase of assets will be debited. Purchase of assets जो है वो डेबिट होगा. समझ में आया क्यों डेबिट हुआ है? एक बार फिर से सुनते हैं. पहले ऊपर का हमको याद रखना. डेबिट मतलब reduce in owners capital. जो कैपिटल अगर कम होगी तो डेबिट, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट. कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो हमने पूंजी बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाई थी. दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. अगर कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट, कैपिटल ज्यादा हो रहा है तो क्रेडिट. परचेज ऑफ एसेट्स. व्हेन द एसेट्स आर परचेज्ड, जब एसेट्स खरीदते हैं, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस मीन्स द कैपिटल इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन द कैपिटल इज डिक्रीजिंग मीन्स परचेज ऑफ एसेट्स विल बी डेबिटेड. क्लियर? नाउ इफ next I am writing the sale of an assets. Sale of assets. Sale of assets. Sometime if the businessman sold the assets, if the assets are sold, अभी हमने खरीदा था उसको भूल जाओ. अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं. If the assets are sold, if we sold the assets, what will happen? If the businessman has sold the furniture or the machine or the land or the building, if he sold an assets, what will happen? Cash is coming in the business. Cash business में आ रहा है. And if cash is coming in the business means the capital is increasing. Capital increase हो रही है, capital बढ़ रही है क्योंकि कैश आ रहा है. कैश आ रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ रही है तो यहाँ पे हमने लिखा है there is increase in the capital, then it will be credited. Means sale of assets will be credited. समझ में आया ये क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ? सेल्स ऑफ एसेट्स. व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड, कैश विल कम इन द बिजनेस, एंड व्हेन द कैश विल कम इन द बिजनेस, कैपिटल विल इंक्रीज. Capital will increase means it will be credited because the credit means increase in the owner capital. It means that the sale of an assets will be credited. अगर assets बिक रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर assets खरीद रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा. क्लियर आ गया? अभी यहाँ पे एक तरीके से और लिख सकते हैं. अगर परचेज ऑफ एन एसेट्स मतलब क्या हो रहा है? अगर हम एसेट्स खरीद रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैपिटल जो है कम हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है. कैपिटल रिड्यूस हो रहा है मीन्स
डेबिटेड, ये डेबिट हो जाएगा। और फॉर द डेबिट वी कैन राइट द वर्ड DR। एंड यहाँ पे सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स मींस कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। सेल मतलब बेचना, जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब प्लस, मतलब हमारी जो है इनकम, इनकम नहीं कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब हमारी कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज इन द कैपिटल क्रेडिट होता है। दिस वॉज अबाउट द एसेट्स, ये हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज द लायबिलिटीज। अब हम लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। लायबिलिटीज, so what does the liabilities means? Liabilities क्या होता है? That I have already explained in the earlier videos. So the liabilities means the amount which the owner of the business has to pay to the others. The amount borrowed by the owner of the business for the business is called the liabilities. जो business का owner है उसको किसी और को पे करना है, जो बिजनेस के ओनर ने बोरो किया है, किसी से उधार लिया है और ओनर को किसी और को पे करना है, दैट इज कॉल्ड द लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज होता है। सो लायबिलिटीज विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ये डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा। लेट अस सी, सपोज आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड आई हैव बोरोड सम अमाउंट, सो द लोन, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई हैव रिसीव्ड द लोन। मैंने लोन लिया है, जब लोन लिया है तो क्या हो रहा है? कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। जब मैंने लोन लिया है, वो लोन पे करना है, उधार है, वो अलग बात है। अभी मैंने लोन लिया है, लोन लिया तो मेरे पास पैसा आया है, पैसा आया है तो कैपिटल मेरी पूंजी बढ़ गई है, पूंजी बढ़ गई है तो हम ऊपर चलते हैं, बढ़ गई है मतलब इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब क्रेडिट। हमको तुरंत ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है उसको दिमाग में आना चाहिए। फिर से आगे लिसन, रिसीव द लोन, व्हेन आई हैव टेकन द लोन, और व्हेन अ बिजनेसमैन हैव टेकन अ लोन, सो व्हेन ही हैज रिसीव्ड द लोन, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस and his capital is increasing. What is happening when he has taken the loan? Capital is increasing. पैसा आ रहा है उसके पास, पैसा बढ़ गया उसके पास. So this will be credited because here I have written that increase in the owner capital credited. Whenever there is the increase in the owner capital, then it will be credited. Means receipt of the loan will be credit. जब हम लोन लेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा. Okay? और वी कैन से दैट इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, हमारी लायबिलिटीज बढ़ेंगी. लोन मतलब वही लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज मतलब कर्ज जो हमें पे करना है. तो जब लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, सो इट विल बी क्रेडिटेड. नाउ द पेमेंट ऑफ द लोन, जब मैंने लोन लिया है तो ऑब्वियसली आई विल पे द लोन, कभी तो मैं लोन पे करूंगी. ओके, सो द पेमेंट ऑफ द लोन, व्हेन द बिजनेसमैन पे द लोन विच ही हैड बोरोड, जो उसने बोरो किया था, जो उसने उधार में लिया था, व्हेन ही पेड द लोन, then what will happen? कैश विल डिक्रीज. जो अपने जो उसका बिजनेस से कैश जो है कम होगा, क्योंकि वो लोन को जो पेमेंट कर रहा है, जब वो लोन पेमेंट कर रहा है, वापस कर रहा है, बिजनेस में जो पेमेंट वापस कर रहे हैं लोन को, इससे क्या होगा? तो कैश विल डिक्रीज, कैश कम हो जाएगा. वेन बाकी हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ कैश को देखना है, कैश इंक्रीज हो रहा है या कैश डिक्रीज हो रहा है. तो बिजनेसमैन पेड द लोन, देन व्हाट विल हैपन? द बिजनेस हैज पेड द लोन, so the cash of the business will decrease, and the cash will decrease means capital is also decreasing, and the capital is decreasing means debited. So the payment of the loan will be debited. Clear? अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? Assets के बारे में पढ़ा और liabilities के बारे में पढ़ा. ठीक है? Now the third is the capital. अब हम capital के बारे में पढ़ेंगे. Capital will be debited और credited. Capital को क्या करना है? Debit होगा कि credit होगा? कैपिटल. सो कैपिटल इज द अमाउंट. पहले हम कैपिटल के बारे में जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. सो व्हेन द बिजनेसमैन एम्प्लॉयड द कैपिटल इन द बिजनेस, जब बिजनेसमैन कैपिटल लगा रहा है, जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस ओपन कर रहा है, और वो क्या करेगा? पैसा लगाएगा बिजनेस में. जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो क्या हो रहा है? कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है बिजनेस में. तो इस कंडीशन में क्या होगा? कैश आ रहा है मतलब इंक्रीज इन द ओनर कैपिटल. इंक्रीज हो रहा है, ओनर्स कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है. सो इंक्रीज इन द ओनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. अमाउंट इन्वेस्टेड, इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट, So there are the two conditions. At the time when the amount was invested in the business, जब बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, at that time the cash was coming in the business. Cash was coming means the capital was increasing, and the capital was increasing means credit. So the amount invested in the business will be credited because the cash is coming in the business and the capital is increasing, so it will be credited. Okay? It will be credited, right? And when the owner of the business withdraw some amount, अगर वही जो ओनर है बिजनेस का अमाउंट विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस,
amount withdrawn. When the owner of the business withdraw some amount, अगर business का जो owner है amount withdraw करता है due to any reason कुछ भी हो सकता है. So what will happen when the amount is withdrawn? What will happen? The cash will decrease because cash is coming out from the business. Cash business से बाहर आ रहा है तो cash is decreasing, and if the cash is decreasing, the capital will also decrease, and that both are decreasing. दोनों कम हो रहे हैं, cash भी कम हो रहा है, capital भी कम होगा. And minus है ये है reduce मतलब debit, so it will be debited. Amount withdrawn will be debited. Amount withdrawn will be debited. Okay? समझ में आया? कैपिटल में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, जब हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब हम पैसा निकाल रहे हैं. जब हम अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो हमारा ही पैसा है, पर हम इसको बिजनेस में लगा रहे हैं, मतलब बिजनेस में पैसा जा रहा है, और बिजनेस में पैसा जा रहा है मतलब हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है. ओके, इंक्रीज हो रही है, तो दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड. और अमाउंट विड्रॉन, व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन द कैश विल डिक्रीज, द कैपिटल विल डिक्रीज, हेंस इट विल बी डेबिटेड. Clear? Before rubbing it, one more time I will explain you the purchase of the assets. First I will explain you about the assets. There can be two conditions. Assets can be purchased और assets can be sold. या तो assets को हम खरीदेंगे या तो assets को हम बेचेंगे. जब हम खरीदेंगे assets को खरीदेंगे तो कैश जा रहा, हमें कैश देखना है, उसके बदले में गुड्स आ रहा, हमें वो नहीं देखना. We have to see the cash. So when the assets are purchased, cash will go out of the business, means the capital will decrease, and capital will decrease means it will be debited. ऐसे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज. फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज, मशीन हमने खरीदी, मशीन खरीदी है तो क्या हो रहा है, मशीन आ रही है, मशीन आ रही है एंड कैश जा रहा है, मशीन आ रही है एंड कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या हो रहा है, कैपिटल कम होगी, कैपिटल रिड्यूस होगी, तो मीन्स इट विल बी डेबिटेड, मीन्स मशीन विल बी डेबिटेड. ये जो मशीन है वो डेबिट हो जाएगी. ओके. एंड द सेकेंड कंडीशन विल बी सेल ऑफ एसेट्स. अब हम एसेट्स को जब बेचेंगे तब क्या होगा, कैश विल कम इन द बिजनेस. व्हेन कैश विल कम द कैपिटल विल इंक्रीज, एंड व्हेन कैपिटल विल इंक्रीज मींस क्रेडिटेड. तो सो सेल ऑफ एसेट्स विल बी क्रेडिटेड, राइट. नेक्स्ट इज द लायबिलिटीज. इन द लायबिलिटीज ऑल्सो देयर आर टू कंडीशन. लायबिलिटीज मीन्स कर्जे, when the businessman take a loan or when the businessman pay the loan. So when the businessman will take a loan from anybody, when the businessman take the loan, what will happen? Cash will come in the business, cash will come, so capital will increase, capital will increase means it will be credited, so the receipt of the loan will be credited. Then the next condition is the payment of the loan. When the businessman pay the loan, the cash will go out of the business, the capital will decrease, and the decrease means debit, so the payment of the loan will be debited. And again in the capital there will be two conditions. First, the amount invested in the business. When the amount is invested in the business means the capital will increase, and capital will increase means it will be credited. Cash is increasing and therefore capital is increasing, so it will be credited. Amount invested will be credited. And amount withdrawn. When the amount is withdrawn from the business, cash will decrease, capital will decrease, and means it will be debited, so amount withdrawn will be debited. Are you getting it? What I want to say? कि कौन सा आइटम डेबिट होता है और कौन से ट्रांजेक्शन क्रेडिट होते हैं. क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच. सो इनकम एंड प्रॉफिट. सो इन वेदर द इनकम विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा. अब आप खुद ही आप पता कर सकते हो कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा. कैसे? लेट अस सी. इफ देयर इज अ इनकम इन द बिजनेस, इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, इफ द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, देयर विल बी द टू कंडीशन, इंक्रीज और डिक्रीज. या तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा. ओके, ऑब्वियसली टू कंडीशन हो सकती है, या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या तो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, या इसको इनकम भी बोल सकते हैं, या तो इनकम बढ़ रही है या तो इनकम कम हो रही है. सो इफ इन द बिजनेस, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में हमको कैश देखना है, हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी ओनली कैश. सो इफ द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग इन द बिजनेस, अब आप बताओ अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो क्या इंक्रीज हो रहा है, यस कैश इज इंक्रीजिंग, एंड कैश इज इंक्रीजिंग मीन्स कैपिटल इज इंक्रीजिंग, पूंजी बढ़ रही है, और पूंजी बढ़ रही है मतलब प्लस, ये प्लस साइन हमने क्यों लगाया, कैश इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रॉफिट. प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो कैश ज्यादा हो रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है तो कैपिटल पूंजी बढ़ रही है, और पूंजी बढ़ रही है मीन्स इट विल बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट हो जाएगा, मीन्स इनकम एंड प्रॉफिट विल बी credited. Okay, and the other side, if the profit is decreasing, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है,
एंड द इनकम इज डिक्रीजिंग, इनकम या प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कैश कम होगा, कैश कम होगा तो हमारी पूंजी कम हो जाएगी और हमारी कैपिटल कम होगी, मतलब माइनस में हो रहा है, माइनस में जा रहा है। ओके अगर इनकम कम हो रही है, अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमारे पास कैश कम आएगा, हमारे पास कैश कम होगा तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब माइनस है। और यहाँ हमें मालूम है माइनस मीन्स डेबिट, माइनस का मतलब डेबिट होता है। सो इफ द प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग सो इट विल बी डेबिटेड, if the profit or the income is decreasing in the business then it will be debited, right? So we can say that increase in the profit will be credited and decrease in the profit will be debited। ये सब आपने कैसे किया, सिर्फ आपको ये ऊपर का दो ये याद रखना है बस, उससे आप कुछ भी डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। सिर्फ यू हैव टू रिमेम्बर दिस, प्लस मीन्स क्रेडिट एंड माइनस मीन्स डेबिट, ये बस याद रखना है आपको, बाकी आपको सारे बच जाएंगे। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। Expenses and losses are increasing, expenses मतलब खर्चे and losses मतलब नुकसान। And if the expenses are increasing, expenses मतलब अगर खर्चे बढ़ेंगे, अगर खर्चे बढ़ेंगे obviously कैश कम होगा, कैश कम होगा मतलब हमारी पूंजी कम हो रही, कैपिटल कम हो रहा है, means the cash and the capital both are decreasing, जब दोनों कम हो रहे हैं तो here we know that कम मतलब डेबिट, so it will be debited, means expenses and losses if increasing will be debited, clear? And in the same way if the expenses and the losses are decreasing, decreasing मतलब कम होना, अगर कम हो रहे हैं, अगर खर्चे हमारे कम हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं, हमारा नुकसान कम हो रहा है, तो कैश ज्यादा होगा, कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी एंड कैपिटल बढ़ेगी, वी नो दैट प्लस विल बी क्रेडिटेड, सो इट विल बी क्रेडिटेड, मीन्स इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, अगर खर्चे कम हो रहे हैं, नुकसान कम हो रहा है, तो कैश बढ़ रहा है, तो इट विल बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट होगा। अब यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस है तो क्रेडिट हो रहा है, माइनस है तो डेबिट हो रहा है, जरूरी नहीं कि प्लस में डेबिट ही हो। ओके हमें सिर्फ क्या देखना है, वी हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस, डेबिट मतलब माइनस, माइनस मतलब कैश कम होना एंड क्रेडिट मतलब प्लस, प्लस मतलब कैश बढ़ना, वी हैव टू ओनली सी द कैश, हमें सिर्फ कैश देखना है कि हमारे बिजनेस में कैश इज इंक्रीजिंग और कैश इज डिक्रीजिंग। इफ द कैश इज इंक्रीजिंग it will be credited and if the cash is decreasing it will be debited, okay? So in this video I have explained you the rules of debit and credit under the assets, for the assets, for the liabilities, for the capital, income and expenses। इनके बारे में मैंने डेबिट और क्रेडिट एक्सप्लेन किया कि जब ये इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, एंड द रूल्स, these rules which I have explained in this video was according to the modern approach and hope you have understood this topic. So now what you have to do, take your copy and pencil and just write the heading debit minus and credit plus। आपके मन में जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं आप उसको खुद क्लासिफाई कर पाओगे कि दैट इट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, सिर्फ आपको ये हेडिंग लिख के रखना है कॉपी में और आप कोई भी ट्रांजेक्शन अपने आप से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा वो। ओके so hope you understood these topics, rules of debit and credit according to the modern approach, and if you have any queries relating to the any of the point you can mention it in the comment section, I will try to clarify that point, and in the next video we will meet with the traditional approach of the rules of debit and credit. So till then take care, bye bye.